Good afternoon, nurses. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Today we have got a very special topic which in NCLEX exam will surely come. And not only for the NCLEX exam, it will also come in your OSCE exam. Not only in OSCE exam, no matter in which hospital you will take the job, in any interview, whether it is foreign country, in UK, Australia, New Zealand, USA, Canada, or even in India when it comes to NORCET, AIMS exam or AIMS interview, everywhere this topic is one of the most important topics because this is about which position is given to the patient in which circumstances, and of course nurses are majorly responsible for the same. So this topic is something that is going to repeat for the nurses every now and then. Let's talk about this topic, and I have prepared some slides for you so that you never forget about this topic. This is known as positioning of the patient, and that is very important topic. Again, not only for the NCLEX, for every exam. Please share this topic with all your friends so that they can crack the interviews, they can crack their OSCE exam, they can crack their NCLEX exam. This topic is going to be really BB topic. It's the captain of Indian cricket team like Rohit Sharma, Harmanpreet Kaur. So this topic is gonna stand out for you nurses forever in your life. Let's talk about this topic, and I will try to make it as interesting as possible. Again, Dr. BKM NCLEX classes, the easiest way of learning NCLEX in the most interesting way. So most interesting way, I will try and build that. Keep following this video till end. Okay, first position is supine. Of course, supine position is like sleeping position. Sleeping position means आराम से patient को you just make him lie flat on the bed, and obviously इस position को हम कब कब use करते हैं? This is the question that will come in the NCLEX. Majorly कोई भी physical examination head to toe कोई भी assessment करनी हो, after that lumbar puncture देने के बाद, after the collection of the CSF cerebrospinal fluid, आप लंबर पंक्चर देने के बाद यही पोजीशन देते हो, बिकॉज दिस पोजीशन काइंड ऑफ stabilizes the patient's blood flow and does not let it flow too much. So that is why this position is very important, and you must remember during the CPR while saving the life of the patient, we all know this is the best position. इसका डिसएडवांटेज एक ही है, जब भी कोई पोजीशन की बात होगी डिसएडवांटेजेस में हमेशा प्रेशर सोर्स की बात होगी। इसीलिए पेशेंट को किसी भी पोजीशन में आफ्टर 2 आवर्स आपको शिफ्ट करते रहना है, लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल, ताकि प्रेशर सोर्स ना हो। सो प्रेशर सोर्स एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज होती है किसी भी सुपाइन पोजीशन की। अगर मैं इसके फीट को ऊपर ले जाऊं या इस पेशेंट को लेग्स को चेंज भी कर दूं, लेकिन मींस लेग को एलिवेट भी कर दूं, तब भी प्रेशर सोर्स का टॉपिक हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इजी टू रिमेंबर है। अब ये पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नॉट एग्जैक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बट इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यू नॉर्मली अवॉइड दिस पोजीशन। ब्रीदिंग के लिए अलग पोजीशंस होती हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक एज वी फ्लो टुवर्ड दिस स्लाइड। यस, सो रेस्पिरेटरी में इसको अवॉइड करना है और प्रेशर सोर्स से बचना है, और देना कब है? लंबर पंचर के बाद और किसी भी एग्जामिनेशन के टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पोजीशन इज प्रोन पोजीशन। दिस इज किंग कोहली, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पोजीशंस, बिकॉज जैसे कोहली का इंडियन क्रिकेट टीम में रोल है, द सेम रोल ऑफ इज दिस पोजीशन बिकॉज इट सेव्स द लाइफ ऑफ द पेशेंट, एंड यू नो दिस पोजीशन बिकेम वेरी पॉपुलर इन कोविड-19. So in COVID-19, this position just became very, very popular, and in acute respiratory distress syndrome. So जब भी कोई acute respiratory problem है, इस position को आप use कर सकते हो. Obviously with the tubes and things, it becomes little difficult. So obviously not in those cases, but yeah, whenever you are suffering from any critical respiratory condition, it definitely helps you to improve your breathing. Okay. थर्ड, दिस इज डोर्सल रिकम्बेंट। रिकम्बेंट वर्ड के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये वर्ड भी आपको बार बार आएगा पोजीशन में। रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग फ्लैट। अगर आपको कभी भी पेपर में रिकम्बेंट का वर्ड मिले, यानी कि सुपाइन और प्रोन भी रिकम्बेंट पोजीशन ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है एनक्लेक्स में। तो रिकम्बेंट पोजीशन का मतलब है लाइंग डाउन, हॉरिजॉन्टली लाइंग। सो इसमें लेकिन इस पोजीशन में डोर्सल रिकम्बेंट किसको बोलते हैं? जब ये नीज फ्लेक्स्ड हो। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नीज फ्लेक्स्ड फॉर्म में है, यहीं से आपको डोर्सल रिकम्बेंट को याद रखना है। अब इस पोजीशन के बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जब भी हम इस पोजीशन को देखते हैं, ऑब्वियसली
वेन एवर देर इज एनी वेजाइनल एग्जामिनेशन और गाइनी एग्जामिनेशन, आपको लगता है गाइनी में सबसे इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है, और इवन फॉर द चाइल्ड बर्थ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टीच यू with this, and that is why it is so important to join the NCLEX classes with experienced institutes, because हमें लगता है कि जैसे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को देख के आपको लगेगा दिस कैन बी फॉर चाइल्ड बर्थ फॉर दिस, बट ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। हम चाइल्ड बर्थ के लिए नेक्स्ट आपको पोजीशन बताएंगे विच इज लिथोटोमी, बट वी विल टॉक अबाउट दैट पोजीशन लेटर ऑन। बट या, इसमें नीज बेंट रहती है, और मेजरली ये फोलिक कैथेटराइजेशन के लिए होती है, फोलिक कैथेटराइजेशन के लिए होती है, स्पेशली इन द फीमेल्स, सो दैट विल हेल्प इन काइंड ऑफ यूरिनेशन एंड स्टफ, एंड पेरी केयर के टाइम और पेरिनियल केयर के टाइम ये यूज होती है। प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, नोट for gynae checkup. That is what is the difference between these exams when you take NCLEX exam especially. That is why this position is not recommended. Please understand this point. And let's jump on to our next position, which is also important. That is what we talked about is lithotomy. So lithotomy is the position. Litho means stones. Tomy means kind of operation or removal. So yeah, removal of the stones is the main thing. The sectioning. So yeah, removal of the stones is done. So it is also recumbent position. Again, the patient is lying. So please don't get confused. Lying position is all recumbent. So this is also kind of a, but this recumbent position is with stirrups. Stirrups are these things जिसका support लिया हुआ है knees पे. So that is what is the support. And this position is for the childbirth and vaginal examination and cystoscopy. ये बहुत ही important topic है। मतलब अगर मैं इसको बॉलीवुड से रिलेट करूं, इट इज अमिताभ बच्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर NCLEX exam. So this question is very important, very, very important for NCLEX exam. Okay. Jumping on to the next, which is this position. This is sign lying position, of course, but this position is the same. What we talked in the start was like after lumbar puncture, this is the position for lumbar puncture, where L3, L4 or L4 या L5 के बीच में when you try to take the CSF. So this is one of the most important position, and why it is used, obviously to prevent pressure ulcers, बोनी प्रोमिनेंसिस को प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए, एंड दिस लंबर पंचर और वाइल लंबर पंचर। सो सुपाइन पोजीशन वाज आफ्टर लंबर पंचर एंड दिस पोजीशन इज वाइल लंबर पंचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं जो पूरे लाइफ टाइम आपके काम आती रहेंगी। सो दैट इज वाई वेदर यू आर डूइंग NCLEX, NORCET, एनी एग्जाम यू टेक, दिस टॉपिक विल स्टे विद यू इन योर मेमोरी फॉर एवर। ओके। Now the next position I would talk to you about is left lateral recumbent. इसे डेक्यूबिटस भी बोलते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगेन सेम पोजीशन है, बस इसे डेक्यूबिटस भी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेल फीमेल्स को कहा जाता है कि नेवर लाई फ्लैट बिकॉज इट विल पुट प्रेशर। सो यू ऑलवेज हैव टू बी साइड after especially in second and third trimester. So please, again, these are very very subtle topic, and please remember these. और obviously ये blood flow को बढ़ाएगी to placenta और fetus में ये blood flow को बढ़ाती है। सीजर्स में इस पोजीशन का बहुत यूज है, क्योंकि अगर एस्पिरेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में ये पोजीशन ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा में हेल्प करती है। सो इन एनी केस व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस हैविंग सीजर्स अनेबल टू कंट्रोल द बॉडी, so this position decubitus or the left lateral recumbent become very very important. Now the most important thing is air embolus, एयर एम्बोलाई। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 90% इसमें से यही क्वेश्चन आएगा अगर मैं स्पेसिफिकली NCLEX एग्जाम की बात करूं। सो इस टॉपिक को आप, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट दिस इज लाइक एवरीथिंग। दिस इज लाइक अगेन अ कैप्टन ऑफ द शिप, a spearhead of the bowling attack like Jasprit Bumrah. So this is what is very important, air emboli, air emboli, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एयर एम्बोलाई के टाइम हमेशा इस पोजीशन को प्रेफर किया जाता है। जैसे एग्जांपल, एक वाटर बोतल हाफ भरी है, तो अगर हम उसे टिल्ट करेंगे तो एयर ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे रह जाएगा, क्योंकि एयर लाइटर होती है। सो एयर एम्बोलाई में ये होती है, जब बॉडी को हम टिल्ट कर देते हैं तो एयर जो होती है ऊपर चली जाती है, राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ। तो वो
पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी तो लंग्स में जाएगी, एंड देन इट कैन कॉज सम फैटल प्रॉब्लम्स। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज रिमेंबर लेफ्ट लेटरल, so that the air can flow towards upper right side of the body, and it should not go towards the left side of the heart. Okay, right side of the heart बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई भी एम्बोलाई होगा तो आप राइट लेटरल दे दोगे, जैसे किसी भी तरीके का अदर एम्बोलाई आता है, सो उसमें आप राइट लेटरल दे सकते हो, डिफरेंट पोजीशन, बट दिस लेफ्ट लेटरल पोजीशन और डेक्यूबिटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो वर्ड्स हमने सीखे, रिकम्बेंट और डेक्यूबिटस, प्लीज इनको मिस नहीं करना है। नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, विच इज, and it is a very small topic, it is not a lengthy topic. Sims position. Sims position is just like, what should I say, Sims position is just like, you know, आप इसको ये भी कह सकते हो semi sleeping position. So this is the position even I sleep in this position. This is sleep relaxing position by keeping the pillow under your knees, and keeping your right arm this way, left arm above. So this is how it is, and this is the most important position for rectal examination. Very important, even during the enema, this is the position. फोले कैथेटर के लिए वी टॉक्ड अबाउट द पोजीशन, अगेन मैं आपको वापस लेके चलता हूँ फोले कैथेटर की पोजीशन के लिए। फोले कैथेटर की पोजीशन के लिए हमने किया था दिस पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट, डोर्सल रिकम्बेंट। लेकिन अगर इस पोजीशन में अगर हम फेल हो जाते हैं, सो देन दिस पोजीशन बिकम्स फॉर फोले कैथेटर। सो इफ हम डोर्सल में पोजीशन में फेल हो जाते हैं, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। सो सिम्स पोजीशन को आपको रेक्टल एग्जामिनेशन, एनीमा और फोलिक कैथेटर के लिए लगना है, सिंपल। नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, but this is not that important, that's why I have made very small point. Knee chest position is for the rectal examination, something like bending position, so you can check it over the Google or internet, and this is like wow. Trendelenburg position is very very important position. See, the patient is supine, but the bed is tilted towards 15 to 30 degree. This position is majorly for the central venous catheter line, and also it's very important to avoid air emboli. एयर एम्बोलाई वर्ड के साथ आपने हमेशा हमेशा, हमने जो भी पोजीशन की थी, हमेशा इसको याद रखना है। सिम्स, सॉरी, लेफ्ट लेटरल को, लेफ्ट लेटरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, लेफ्ट लेटरल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन ऑफ एयर एम्बोलाई, तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, वो एयर एम्बोलाई बनने के बाद है, दिस इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एयर एम्बोलाई। बट अगर एयर एम्बोलाई को प्रिवेंट करना है, व्हेन वी आर गेटिंग द एक्सेस वाया द सेंट्रल वीनस कैथेटर लाइन थ्रू इंट्राजुगुलर वेन और सबक्लेवियर वेन, तो प्लेसमेंट एंड रिमूवल के टाइम हमेशा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी है। सो इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एयर एम्बोलाई एंड ड्यूरिंग द पेल्विक सर्जरीज सेंट्रल वीनस कैथेटर लाइन के टाइम हमेशा ये देना है। क्यों देना है? एयर एम्बोलाई को प्रिवेंट करने के लिए, सिंपल। रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन, सर्जरी ऑफ द हेड एंड नेक, ताकि ओवरफ्लो ना हो, तो कैन हेल्प डिक्रीज द ब्लड फ्लो एंड लॉस। तो अगर हमने हेड और नेक की किया ऑब्वियसली, एंड क्लोज सर्वाइकल ट्रैक्शन, जिसमें हम सर्वाइकल फ्रैक्चर के बाद पुश करते हैं हेड को, सर्वाइकल को, ताकि बेसिकली पेशेंट की फ्लैट हो सके, उस केस में ये पोजीशन बहुत अच्छी है। वैसे तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज सर्वाइकल ट्रैक्शन, इसे सुपाइन पोजीशन भी कह सकते हैं, बट इट इज अ रिवर्स टेंडल बिकॉज हेड इज लिटिल टुवर्ड्स अपर साइड। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग। आफ्टर दिस फाउलर विल कम। मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर जाती है, बट गाइस दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसमें भी पेशेंट को हम फ्लैट ही लाई करेंगे, पेशेंट फ्लैट लाई करता है बिल्कुल सिंपल जैसे करते हैं, लेकिन बस इसमें लेग फ्लैट की बजाय लेग एलिवेटेड होती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ आई हैव टू रब दिस, so this position will be like this. So body and leg would be up. It is a supine position, but leg would be up. This position is very very important. And again this position will also tell you, आप इंटरनेट पे या किसी अच्छी बुक से, व्हेन वेयर एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम, उस बुक से कंसल्ट करोगे और लेटेस्ट डाटा को पढ़ोगे और लेटेस्ट एविडेंसेस को पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा हाइपोटेंशन में नॉर्मली ट्रेंडलबर्ग को कहा जाता है। नॉर्मली जब इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं,
बट अब हाइपोटेंशन के केस में कभी भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन को नहीं दिया जाता, बल्कि मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेटेस्ट सिनेरियो। किसी भी केस में जहाँ पे हीमोडायनामिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट की पंपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लड वेसल्स में कम ब्लड जा रहा है, हीमोडायनामिक प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये वीनस रिटर्न को बढ़ाएगा। ये लेग का पोजीशन वीनस रिटर्न को बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली ये हीमोरेजिक शॉक, जहाँ पे 30 to 40% ग्रेड 3 ब्लड लॉस होता है, तो वहां पे ये पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेंशन में ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न्स और ग्राफ्टिंग में भी इस पोजीशन को, आफ्टर ग्राफ्टिंग और इन बर्न्स, दिस पोजीशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक को भी हम मिस नहीं कर सकते। याद रखना, मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग, हीमोडायनामिक्स, ब्लड से रिलेटेड हाइपोटेंशन, जितनी भी चीजें हैं वो इस पोजीशन से आएंगी। नाउ कमिंग टू, प्लीज लिसन टू दिस वीडियो अगेन, आई अंडरस्टैंड, पर दूसरी बार में आपको ये सब याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अगेन दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग दैट वी फॉलो, आपको पक्का याद रहेगा। एंड दिस इज लाइक फाउलर्स पोजीशन। इसकी मेजरली 4 पोजीशंस होती हैं, लेकिन लोग सिर्फ 2 या 3 पढ़ाते हैं। बट लो, सेमी और फाउलर्स, तीनों पोजीशंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग की मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो एक्यूट केस में तो हम प्रोन पोजीशन देंगे, लेकिन वैसे नॉर्मली ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सीओपीडी या कोई भी एज्मा या कुछ भी, सबसे पहले हम ये फाउलर पोजीशन देंगे। अगेन इसमें इवन बिफोर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, नर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा इन ओपीडी में इस पोजीशन को, फाउलर पोजीशन को। जीआई एंटीरियल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग के टाइम ऑल्सो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के टाइम भी हमेशा यही पोजीशन दी जाती है ताकि एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके। वेंटिलेटर पे पेशेंट जब होता है या सक्शनिंग, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोजीशन। इट विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीज cranial pressure. So yeah, so this is how this position is very important. It will respiratory, एस्पिरेशन, वेंटिलेटर, सक्शनिंग और इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर में, अगर इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर कभी कभी टॉपिक आता है तो आपको इसी पोजीशन को चूज करना है। नाउ द नेक्स्ट फाउलर पोजीशन, द लास्ट पोजीशन, सी इतना आसान होता है इफ यू लर्न द राइट वे। अगेन इस वीडियो को बस एक बार और देखना है एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। ये वीडियो अगेन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के लिए यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फाउलर पोजीशन। और ये बाकी सब करेगी, एंटीरियल फीडिंग, दिस सब में जो फाउलर करेगा वो ये भी करेगा। और ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया एक चीज होती है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अचानक से, व्हेन देयर इज एनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट T6, एट T6 और अबव, अराउंड दिस रीजन, एट T6 और अबव, जब भी ब्लड इस यहाँ पे इंजरी होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। एंड ये कई ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम अगेन अगली वीडियोस में बात करेंगे। ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक यू नो इम्पैक्शन इन स्टूल्स और यूरेथ्रा, ब्लैडर का एम्प्टी नहीं होना, सो ऑल दो स्टफ में ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स के साथ होती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पोजीशन एज इट विल हेल्प टू ड्रॉप द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर हम देखें, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सेमी फाउलर में भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करती है, तो उसमें यूज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर ब्लड प्रेशर को बढ़ाना हो तो याद रखना है मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग। तो आप पोजीशन से ही समझ सकते हो, है ना, मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग। और ये बिल्कुल उल्टा काम करेगी, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को घटाएगी और मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग ब्लड प्रेशर को थोड़ा स्टेबल करेगी हाइपोटेंशन में। अगर मुझे हाईलाइट करना इस टॉपिक के पॉइंट्स, अब आप सब कुछ तो याद रख नहीं पाओगे, एक आधा पॉइंट्स आपसे मिस होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 बार सुनोगे और 3 बार सुनोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं भूलोगे पक्का। फिर भी जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं एनक्लेक्स में, एयर एम्बोलाई 90% ये क्वेश्चन आता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हेड डाउन रखना है। तो हेड डाउन को कई बार ट्रेंडलबर्ग, ट्रेंडलबर्ग में अगर आप देखोगे, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ ट्रेंडलबर्ग में, ये देखो, ट्रेंडलबर्ग में हेड डाउन रखते हैं। तो बस इसको साइड में करना है, साइड लाइन पोजिशन, और हेड डाउन रहेगा। तो ये पोजीशन एयर एम्बोलाई के लिए होती है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर गलती से यहाँ पे ट्रेंडलबर्ग भी दे रखा हो, डोंट गेट कंफ्यूज, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट, मैं लिख देता हूँ आपके लिए दोबारा, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट वर्ड इज लाइंग डाउन। और जब हेड डाउन करना है
तो ट्रेंडलबर्ग। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दैट इट्स वेरी हार्ड टू स्पेसिफाई, ऑलरेडी स्पेसिफाइड। रेस्ट ऑल एम्बोलाई जो होते हैं उसमें राइट लेटरल या अदर्स या हेड्स अप फाउलर्स पोजीशन। ओके, रेस्ट अगर कोई भी एम्बोलाई होता है तो उसमें आपको हेड अप रखना होता है, तो फाउलर्स पोजीशन एंड ऑल। एंड हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन के केस में हमने अभी किया ट्रेंडलबर्ग इज रॉन्ग, मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये टॉपिक तो मैं आपको बहुत जरूरी कहूंगा। इसे ड्यूरेंट्स मनूवर भी बोलते हैं, लेफ्ट रेटर हेड डाउन। ड्यूरेंट्स मनूवर का मतलब भी वही है, रिकम्बेंट प्लस ट्रेंडलबर्ग। ट्रेंडलबर्ग का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इसी से ले रहा हूँ कि हेड डाउन। ओके, ऑल प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा, CO2 और इवन बिफोर O2 एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स क्या होगी? टू गिव दिस पोजीशन। सो दिस वाज द वन, या, सो दिस वाज द वन, Fowler's position. This is given as first priority position इवन बिफोर O2 एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM एनक्लेक्स क्लासेस। अगेन, इस हर छोटी बात को सीखने के लिए और छोटी से छोटी बात को समझने के लिए, दैट इज वाई डॉक्टर BKM एनक्लेक्स क्लासेस आर सो स्पेशल। दिस इज डॉक्टर भूपेश guaranteeing you for the best NCLEX classes. And join this channel, subscribe this channel, share it with all your friends to learn more topics of NCLEX. Thank you very much.